नर्सरी का पहला दिन था, बच्चे छोटे छोटे सब, मतलब 100 में से 95 बच्चे रो रहे थे, 97। एक बच्चा जो नहीं रो रहा था, विद द फेयर कर्ली हेयर, ही वाज प्लेइंग सॉफ्ट बॉल ऑल ओवर। मैंने टीचर्स को बोला उसके डैडी को मैं मिलूंगा बाद में। दैट बॉय वाज अ सिद्धेश लाड, सो आई मेट हिज फादर दिनेश लाड। तो ही टोल्ड मी सर स्कूल में क्रिकेट चालू करते हैं, मतलब करो। अगेंस्ट ऑल द चैलेंजेस वी स्टार्टेड क्रिकेट कोचिंग। ओपनिंग हमने प्रवीण आमरे जी के हाथ से करवाया था, चालू हो गए। आई यूज्ड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। कोच बोलते थे कि बच्चे टैलेंटेड है। वन डे ही टोल्ड मी दैट बॉय इज वेरी टैलेंटेड, हिज नेम वाज रोहित शर्मा। तो हमारा स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स था, सो वी हैड इनवाइटेड द लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन गुरु रमाकांत आचेकर सर। उनके हाथ से मैंने फिर रोहित को बैट दिलाया था फॉर scoring that 100. You mentioned Shardul Thakur right now. What was he like in his childhood? Actually, he came only for 1 year. 10th standard में आया, बोईसर से आया था. I was in US actually. My daughter called me. बोला डैडी just turn on आज तक स्टार्स जी। बोला क्या हुआ? बोला शार्दुल भाई ने 6 बॉल में 6 6 मारा है. And he's on all the news channel. मैं आया US के बाद एनुअल डे था, शार्दुल को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने उसका सत्कार किया था एनुअल डे में भाईदास में, उसका भी। This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. Hello guys, welcome to another episode of Cricket Graph. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. He is basically the founder and director of Swami Vivekanand International School, situated in Borivali and Kandivali. He is the founder and director of Springbirds International School, which is again situated in Borivali and Kandivali. He is the managing trustee of Swami Vivekanand Shikshan Vikas Mandal Trust, and he is the founder and director of American Education Trust as well. Thank you so much, योगेश जी, यहाँ पे आने के लिए. First of all, कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? Thank you so much for inviting me. I'm very happy to be part of your wonderful discussion about cricket. करेक्ट. आपका क्रिकेट से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? लाइक व्हाट वाज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ द स्पोर्ट? क्रिकेट का इंट्रोडक्शन एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. बेसिकली आई वाज माय फादर वाज ट्रस्टी इन बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल वे बैक इन 1988-89 in Andheri. So I used to go there and learn some nuances of the school. So basically, see, I'm coming from a very small middle class family. I used to live in 10 square feet by 10 square feet room. So I've seen the struggle, So when I used to go to my school, we used to get 10 paisa for going to school, 10 paisa for coming back from school, back and forth. So we used to feel hungry in the afternoon, so we used to eat one vada pav of that 10 paisa. So while coming back home, there was no money in the pocket. So then we used to come walking, masti karte karte. Then we used to pass Azad Maidan. So वहाँ पे lot of people, they used to do practice in the nets. So we used to watch those practices, and we used to feel like playing the cricket, but there was no support. So then again we used to go back home. We used to play cricket with the hand. There was no bat. Correct. Rubber ball, in the society and all. Correct. So slowly, we had lot of desire and passion to play cricket, but because of the finances, couldn't help it. So when I was there in the Andheri Bombay Grammar School, I used to look after administration. And then in 1994, actually my niece, my sister-in-law was looking for admission for my niece. So she had filled up the form in 1 or 2 school in Borivali. So after 2 months, she didn't got the admission because of there was no school in Borivali before. So she was very upset. And then when I went home, so she told me that admission nahi hua Brinda ka. They are saying there is no vacancy.
I'm going to the school every day for 2 to 3 hours. We sit there in the line. They don't even meet the parents. ना चलो ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके साथ. Get ready in the morning, 9 o'clock. So I went there. I waited for 5 minutes. Then I immediately rushed to the cabin of the principal, and she got wild. मतलब madam, I also run the school. We are from the same field. My sister-in-law is coming for admission for last almost 2.5 months. At least meet her, listen to her. No, I don't have time. This, that. Madam, we also run the school. We don't talk to the parent like this. She very, Very rude. And proudly and rudely said, why don't you start school in Borivali? okay. So I told my sister-in-law, Bhabhi, chalo, let's go. Thank you, I said. Parents were sitting outside. मैंने parents को बोला, you don't back to these people. याद रखना, parents और students है तो ये लोग सब है. Parents were shocked कि ये आदमी कौन है? How dare he speak so loudly and मतलब इतने with the authority outside the principal office, जहाँ लोग उन लोग को बात करने से भी डरते थे. I said, don't back to these people. I went home. I said to my sister-in-law, we'll take admission near my school. Give me. I started to search for the plot. I did a lot of scouting of the plots and all. And finally, it clicked in 94. We started the school. We started the admission in December 94. And we started the construction in January 95. So parents were asking me, where is the school? We'll build it here. Don't worry. Parents said, there is no way you can build the school. One parent told me, sir, I'm engineer. This is a Gora area, which is, martial land. You have to go for piling and all. I said, I know that. So बोलता है आपका स्कूल होएगा नहीं, आप एडमिशन अगले साल करो. बोला नो, आई विल डू इट. जून तारीख भी दिया था 10 जून. बोला विल डू इट. फिर 95 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आई यूज्ड टू गो मॉर्निंग 3 o'clock 4 o'clock. मैं सुबह 9 बजे आता था. एडमिशन देखता था, टीचर्स के इंटरव्यू देखता था. एंड देन आफ्टर 4 o'clock 5 o'clock I used to go on the ground and look after the construction. I used to motivate those contractors. उनको खाना देता था, रात को. एक बंदा था चंद्रकांत यादव करके, वो पाइलिंग में रात को ठंडी, दिसंबर में बहुत ठंडी था 94 95, और पानी में काम करना. वो अकेला बंदा रात 3 बजे तक काम करता था. मेरे को बोलता, सर मेरे को खाली एक टैप रिकॉर्डर लेके देना. मतलब तेरे को जो चाहिए मैं देंगे, तू काम कर चुपचाप. 2-3 महीने में काफ़ी ऊपर आने लगा. मार्च में अप्रैल रात को पेरेंट्स दे यूज्ड टू कम एट 1 o'clock and 2 o'clock टू सी whether the school work is going on. मूवी देख के आइसक्रीम खाते खाते देखने आते थे टहलने. तो देखते थे. तो when they used to see me, तो बोलते थे कि अभी तो स्कूल होएगा. And with God grace, we faced all the challenges, but first year we had 1600 admission. तो रात को मैंने 2-2 3-3 बजे जाके बैनर्स भी लगाए थे मैंने खुद ने, स्टाफ को लेके, गोरेगांव से लेके दहीसर तक, because there was no school, in Borivali, Kandili and all. So first year 1600 admission, and then second year. बाद में जून में आए लोग जो were skeptical कि स्कूल नहीं होएगा. Admission were closed. Correct. So they were upset. I said, no, don't worry, come next year. तो नेक्स्ट ईयर तो रात को 9 बजे से लाइन लगी. तो जो बंदा पाइलिंग में था बोलता था टैप रिकॉर्डर देना, याद हो, उसको मैंने स्कूल में रख लिया था एज अ प्यून. और वो बंदा इतना वर्सेटाइल था, वो स्कूल की विकेट भी बनाता था, वो बस भी चलाता था, वो प्लम्बिंग का काम भी करता था. ही यूज्ड टू डू इवन इलेक्ट्रिकल वर्क, ऑल, मतलब ही वाज जैक ऑफ ऑल. या करेक्ट. सो स्कूल स्टार्ट हो गया, देन आई वाज ऑन द राउंड्स ऑन द फ्लोर्स. नर्सरी का पहला दिन था, बच्चे छोटे छोटे सब, मतलब 100 में से 95 बच्चे रो रहे थे, 97. तो मैं टीचर्स को बोला, टेक केयर ऑफ देम, गाइड देम, जस्ट काम डाउन. एंड एक बच्चा जो नहीं रो रहा था, with the fair curly hair, golden hair, fair skin, he was playing softball all over.
बाकी सब रो रहे हैं, उसको कौन लेना देना है? हाँ. तो मैंने टीचर्स को बोला उसके डैडी को मैं मिलूंगा बाद में, 15-20 दिन जाने दो, लेट देम सेटल. एंड देन दैट बॉय वाज अ सिद्धेश लाड. सो आई मेट हिज फादर, दिनेश लाड. तो ही टोल्ड मी सर स्कूल में क्रिकेट चालू करते हैं. मतलब करो, तो क्या लगेगा बोलो मेरे को. तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो लॉट ऑफ डैब्रीज एंड स्टील एंड सब पड़ा था. अगेंस्ट ऑल द चैलेंजेस वी स्टार्टेड क्रिकेट कोचिंग, यू नो. उसका ओपनिंग हमने प्रवीण आमरे जी के हाथ से करवाया था. अच्छा, उनको ओके. बुला के हाँ. क्रिकेट स्टार्ट हुआ, यू नो. और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ क्रिकेट का. पहला साल हुआ हम लोग हार गए, दूसरा साल हुआ गए. मैंने कोच को बोला कि मेरे को फाइनल मारना है. तो बोले कि इट इज़ नॉट इजी, टफ है, लेकिन करेंगे डेफिनेटली. And when was the first year of Swami Vivekananda International School? 95. It was 95. 95. And when did they start playing cricket? 95 only. अच्छा, in the same year you all began both school as well as cricket. Okay. फिर यू नो क्रिकेट चालू हो गए. आई यूज्ड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स. अभी कोच बोलते थे कि बच्चे यू नो अच्छे टैलेंटेड है, तो मतलब करो ना, डोंट चार्ज एनीथिंग टू देम. बच्चों को हम स्कूल विल सपोर्ट देम फॉर बॉल, बैट, सब खर्चा हम करेंगे. सो ऐसा अच्छे से चलने लगा. फिर वन डे यू नो he told me that, you know, this boy is very talented. His name was Rohit Sharma. Acha, okay. What did you see in Rohit Sharma back then? He was very simple boy, very modest, very down to earth, very shy, you know. तो बोला कि अच्छा है, उसको सपोर्ट करना है. बोला ठीक है, कर दो उसका एडमिशन. और उसके बाद एडमिशन करने के बाद तो he was फोकसिंग, he was used to eat cricket, sleep cricket, walk cricket. उसके अलावा कुछ करता ही नहीं था. ये बंदे में इतना फायर था, इतना पैशन था. तो फिर स्कूल के टूर्नामेंट्स थे. सो आई वेंट टू आज़ाद मैदान टू वॉच दोज टूर्नामेंट्स. तो मैं कभी आई नेवर सिट इन द टेंट. तो वहाँ टेंट में देख के दूर पता नहीं चलता है, काफी डिस्टेंस होता है. हाँ. तो आई यूज्ड टू स्टैंड वेरी क्लोज टू द दैट विकेट. हाउ? ओपन ग्राउंड है. Okay. आजाद मैदान. अच्छा, okay. You wanted to be as close to the action as आपको possible. कोई पूछ नहीं सकता है. Correct. If you go to CCI और वानखेड़े, तो you are not allowed on the ground. Of course. But यार पब्लिक है, तो पब्लिक भी वॉक करके जाती थी. तो when they used to see रोहित शर्मा, they used to see कि ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा. तो मेरा I used to feel so proud कि आपके, तो मुझे मालूम था कि ये लड़का कुछ करेगा बड़ा. मतलब ही वॉज वेरी फियरलेस क्रिकेटर. मतलब जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो टेक्निक थी, उसको ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड. करेक्ट. मतलब कोच ने भी कितने बार बोला कि मैंने कुछ किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं. ही वॉज वेरी टैलेंटेड, ही वॉज नेचुरल. तो एक्चुअली उसको स्पॉट भी किया था एज ए बॉलर. ओके. स्पिनर आई गेस. एंड देन बैटिंग उनका उसने शुरू के आईपीएल में विकेट्स भी लिए, हैट्रिक भी लिया था अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ओनली. पिक लिया है. करेक्ट. डेक्कन चार्जर्स आई बिलीव. यस. सो फिर वो अपने उधर मैचेस होते थे, तो जो हिसाब से वो खेलता था ना, बाकी लोगों की कैपेसिटी नहीं थी उसके साथ. बॉलर भी उसको डरते थे उसको बॉलिंग डालने में. पीपल इज टू फियर, यू नो. मतलब कैसे भी, मतलब कौन सा भी बॉल आने दो. सो फिर व्हेन ही स्कोर 100 रन, यू नो. सो हमारा स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स था. सो वी हैड इनवाइटेड द लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन गुरु, रमाकांत आचेकर सर. आचेकर सर आए थे स्कूल में. हमने बहुत लैविश किया था वो प्रोग्राम. हमने भी वहाँ पे हाथी घोड़ा सब लाए थे स्कूल के ग्राउंड पे. पेरेंट्स भी नॉर्मली स्कूल्स हाथी घोड़ा ये सब लाते नहीं है. एंड मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 25 साल पहले की. सो उनके हाथ से मैंने फिर रोहित को बैट दिलाया था फॉर स्कोरिंग दैट 100. और वो बैट लेने भी मैं ही गया था खुद सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आई वांटेड टू गिव हिम द बेस्ट. करेक्ट. सो दिस इज हाउ, यू नो, ही वाज अ
रोहित का जो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड. मेरे को इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स इतने चैनल से फोन आए फॉर रोहित. सो आई यूज्ड टू टेल हिम दैट आई एम ब्लेस्ड. आई थैंक गॉड दैट आई नो हिम एंड ही नोज मी. रोहित शर्मा को तो पूरी दुनिया जानती है, पर रोहित शर्मा पूरी दुनिया को जानना चाहिए ना. And he knows you is one of the proudest moment Proudest moment, you know. So Rohit, you know, he did well in even after the school. He used to come for SSC पास होने के बावजूद भी वो स्कूल में ही आता था प्रैक्टिस को every day. And then he started playing Ranji and all, you know, under 17 वो श्रीलंका गया था. 2007 का जो वर्ल्ड कप था, that was a turning point for him, you know. Correct. जो मैचेस में उसने रन बना के इंडिया को जिताया था. I think he used to come at the end, middle to lower order, and he used to finish the matches for India. पाकिस्तान के मैच के सामने भी, you know, important innings के अलावा to help us get to the total. So that was a journey of Rohit Sharma. And then So how was he in childhood? कुछ funny incidents आप share करना चाहोगे? actually, you know, जैसे मेरी इंटरव्यू में मेरे को चैनल ऑनर बोला था कि उसका कोई क्लासमेट रहेगा तो उसको भी बात करना है. तो मैंने बोला कि मेरी नीज वही उसकी क्लासमेट है. तो मैंने उसको फ़ोन किया. तो लकीली शी वॉज हियर, शी लिव्स इन कनाडा, वृंदा. तो मला चैनल पीपल वांट्स टू टॉक टू यू, यू नो, रोहित शर्मा बैचमेट एंड क्लासमेट. बोला काका क्या बात करूँ. वो क्लास में बैठता कब था? अच्छा, he was not. He was on the ground from morning till evening. इसके लिए तो हम एग्जाम के टाइम हम एक्स्ट्रा टीचर देते थे to make sure that he at least children, gets the not for only Rohit, for all everyone, all the sports people. Correct. Because let me tell you through your channel, Sure. that all the school must understand one thing, that if you want your children to play any sports, Correct. you have to support them. You cannot expect them to score 199 and 95. So what has happened, you know, many times people, they want laurels and trophy for the school through these students, but they don't want to support the children. They need the backing. फिर वो बोलते हैं कि अभी let me tell you one more important point, कि जितने भी talented लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास से आते हैं. Sure, yeah. इसका मतलब ये नहीं कि the people who are coming from wealthy family, they are not talented. Correct. They are also talented, but माँ बाप ने उनको तिजोरी खोल के दिखा दी है. टैलेंट को यूटिलाइज करना थोड़ा एक. So they do not have fire in the belly. Correct. माँ, और मेरी हर स्पीच में पेरेंट्स को बोलता हूँ मैं कि give your children roots and the wings. The roots of the education, you know, values and wings of education. Values plays a very vital role along with the education. But unfortunately, you know, most of the parents are busy. Most of the parents are working, both father and mother. मैं कितने इंटरव्यू में पूछा है मैंने पेरेंट्स को कि आप दोनों वर्किंग है, तो who is looking after child? Sir, my mate is there. The child is goes for babysitting. तो मैंने एनुअल डे में मैंने पेरेंट्स को पूछा था कि how many of you do not want वृद्धाश्रम in the society? ओल्ड एज होम. सब ने हाथ ऊपर किया है. बायदास में प्रोग्राम था, 1100 की कैपेसिटी थी, 1700 पेरेंट बैठे थे, आइल्स में पूरा पैक था. तो मैंने उनको बोला, देन यू नीड टू स्क्रैप द बेबी सिटिंग. ट्रू. आप बच्चे को अभी टाइम दो, गोद में बिठाओ, प्यार करो, तो बच्चे आपको प्यार करेगा. वरना गेट रेडी टू बी किक्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन दे गेट मैरिड. अब देखो ना, कितने बोरीले में मैं देखता हूँ कितने पार्क्स है, वहाँ पे नाना नानी पार्क वगैरह, उधर पूरा दिन खाली घर पे सोने को ही जाना है उनको. सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द पीपल ऑफ लाइफ. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे. एंड चिल्ड्रन दे फॉलो. मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, चिल्ड्रन विल फॉलो योर एग्जाम्पल, नॉट योर एडवाइस. तो आप अगर आपके पेरेंट्स का केयर करते हो तो बड़े हो के they also look at their own parents and so then they will take care of you, otherwise not. So सिर्फ पॉइंट क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास टैलेंट है ना, और उनके पास फायर है.
आप देखते हो ना रियलिटी शो में कितने इवेंट में बच्चे कैसे कैसे आते हैं, कैसी कंडीशन से आते हैं. दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड दे मेक देयर एम्पायर. वो फिर बड़ा कुछ करते हैं. तो मैं क्रिकेट में भी स्कूल में बच्चों को बोलता था, नॉट ओनली क्रिकेट, सब बच्चों को, कि इतिहास आपको याद रखना चाहिए. हिस्ट्री मस्ट रिमेंबर यू, सो डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैं बच्चों को आई यूज्ड टू गिव द एग्जांपल ऑफ डार्विन्स थियरी, ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ही सेड लॉन्ग बिफोर चार्ल्स डार्विन्स थियरी. तो नॉट ओनली फिटेस्ट फिजिकली बट also mentally you have to be strong, because lot of time the children they bully you Correct. in the class, on the field also. So you have to be able to tackle that. My son played cricket. He also played very good cricket. He was a good bowler, best bowler of Mumbai under 14, under 16. So he used to tell me, daddy, when we are batting, the wicket keeper abuses us, गाली देता है, he trying to distract. मतलब concentrate करो, focus करो, meditation करो. तुम्हारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उसकी तुम्हारा बल्ला बोलना चाहिए, मुंह बंद रखने का. स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन ने कितना किया इंडियन क्रिकेटर्स को, और फिर अपने इंडियंस भी गुस्से में आके मारने जाते, आउट होते. और सचिन कैसे करता था? Sachin to tackle it Sachin used to tackle and he used to, उसका बल्ला बोलता था, चुप, used to silence everyone. So क्रिकेट में भी ऐसा है कि बहुत टैलेंट है. मैं क्रिकेटर्स हमारे स्टूडेंट्स को बोलता था कि 100 करोड़ की अब मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की, 100 करोड़ पॉपुलेशन में दे ओनली नीड 15 क्रिकेटर्स. सो थिंक अबाउट इट कि हाउ बेस्ट यू हैव टू बी. यू हैव टू वॉक, जैसे रोहित ने किया था, पूरा दिन ग्राउंड पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ नॉनसेंस नहीं उसका, कोई मगजमारी नहीं, कोई, खाली उसका नॉकिंग ही चालू रहता था पूरा दिन. आपने रोहित शर्मा के साथ कई बार इंटरेक्ट किया है रिसेंटली. मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई चेंजेस ऐसा नोटिस किया है व्हेन इट कम्स टू हिज पर्सनालिटी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही वाज बैक इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में तो बहुत सिंपल था, बहुत मॉडेस्ट था, बहुत सीधा था. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भी सीधा नहीं, लेकिन अभी तो इज बिकम लार्जर देन लाइफ. मतलब ये पूरी दुनिया देखी ना उसने, फ्रॉम 2007 से लेके आज 18. अभी हफ्ते पहले कौन सा तो इंटरव्यू में मैं देख रहा था, तो उसने बोला कि 20 साल पहले मेरे पास क्या था, 20 साल के पास पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज क्या नहीं उसके पास. सो रोहित की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद हम लोग वानखेड़े गए. फिर मैंने उसको, शाम को प्रोग्राम था बोरील में, सब पॉलिटिशियन मेरे पीछे थे. दिस इज 2007 वर्ल्ड कप. 2007. करेक्ट. तो मैंने फिर उसको छोड़ा घर पे. जितने भी लोकल पॉलिटिशियन थे, ऑल पार्टीज, ही हैड बिकम द हीरो ऑफ, मतलब नॉट ओनली बोरीली, मुंबई, हीरो ऑफ मुंबई, मुंबईचा राजा रोहित शर्मा. सो उसको घर पे गए, घर पे कितनी मीडिया, तो दीवार कूद के गया वो, टू अवॉइड मीडिया. उसको छोड़ा जब, और मीडिया वाले बाहर वेट कर रहे हैं. फिर दूसरे दिन ना, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आई अरेंज फॉर अ प्रोग्राम, इमीडिएटली ग्राउंड अपना ऑडिटोरियम बुक किया, प्रबोधन ठाकरे. आई इन्फॉर्म ऑल द पीपल, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. तो 9 बजे का टाइम दिया था. तो पहले तो इतना मोबाइल वगैरह लोगों का यूज़ नहीं करते थे, तो मैंने वेट किया 8:30 पौने 9 तक. रोहित घर पे फ़ोन किया, उठाया नहीं. लोग आके बैठे, पॉलिटिशियन सब, दुनिया भर की मीडिया, ऑलमोस्ट 40 चैनल वर देयर लाइव, और पूरा हॉल पैक है. इमीडिएटली मैं गाड़ी निकाला, घर पे गया. तो ही वॉज नॉट वेल, एक्चुअली ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस. तो आंखें सोराइज था उसको, तो ही वॉज स्लीपिंग. रोहित, लोग आके बैठे उधर प्रोग्राम है. यस सर बेचारा विद इन 5 मिनट ही गॉट रेडी. फिर गए तो बाप रे, उधर तो चैनल मीडिया पूरा. फिर हम लोग ने 2 स्टेज पे बच्चों का परफॉर्मेंस रखा था. फिर उसमें ऐसा था कि एक कर्टन था पेपर का,
तो उसको फाड़ के बाहर आने का था उसको एंट्री, वो एंट्री था उसका। हाँ तो हुआ वो एंट्री सब, और उसके बाद जो हंगामा हुआ बाप रे। फिर उसका मैंने फेलिसिटेशन किया, मतलब ऐसा मेरे को लगता नहीं कि कोई क्रिकेटर्स का कोई स्कूल ने किया होगा, बट आई टू टेक प्राइड कि यार रोहित ने अपने स्कूल को कहाँ से कहाँ लेके गए। ही हैज रियली टेकन आवर स्कूल ऑन इंटरनेशनल मैप, द वे he has played. And let me tell you, Rohit Sharma is the extraordinary cricketer but also extraordinary human being. आज रोहित के बारे में आप मतलब बात करते हैं तो जितने भी दुनिया के लोग हैं इंडियन को छोड़ के, वो भी रोहित शर्मा के फैन है। आई वॉज इन दुबई, यू नो, एंड इन द लिफ्ट आई मेट पाकिस्तानी क्रिकेटर, I forgot his name. रिजवान बाबर, नहीं शाहीन, पुराना इंजमाम और बॉलर था ना, बैट्समैन था और ऑलराउंडर। सो उसको मैं बोला कि रोहित शर्मा इज माय स्टूडेंट, ही स्टडीड इन आवर स्कूल। अरे यार तुम्हारा रोहित शर्मा हमारी सबकी बैंड बजाता है। दैट वाज हिज वर्ड। एंड this was what year he met this happened? Probably 2007 के बाद ही था, आफ्टर वर्ल्ड कप जीतने के बाद। So तभी से उन्होंने बोल दिया था कि अरे वो बोलता है यार खूंखार है, बोलता है हमारा रोहित शर्मा ना खूंखार है। सो यही तो उसके स्कूल से ही हम लोग देख रहे थे कि वो खूंखार बैट्समैन था। कल का भी मैच देखा हमने, परसों का भी बैक टू बैक उसमें जो 70s और 80s पीपल यू नो कभी क्रिटिसाइज करते तो हमको समझ, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज अ डिफरेंट क्रिकेटर, इज नॉट बाकी लोगों के जैसा नहीं है। आज उसके शॉट मतलब रमेश राजा वगैरह के भी हम जब कमेंट सुनते थे तो दे यूज्ड टू प्रेज रोहित शर्मा लाइक एनीथिंग, यू नो। तो he has a fan following in Bangladesh, Pakistan also, let me tell you, and that is his achievement. मैं हमेशा मेरे स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ कि खाली आपको ट्रॉफी नहीं जीतना है, लोगों का दिल भी जीतना है। You have to win the hearts of the people. You cannot be arrogant. अगर आपके पास पावर्स आ गए, आपकी नेम एंड फेम आ गई, ये ज़्यादा टिकती नहीं है। So you have to be grounded, remain grounded and help people, help society. सो रोहित का भी ऐसा ही था, उसने काफ़ी, मैंने कोरोना में भी उसका फ़ोन आया था वीडियो कॉल, तो 15-17 मिनट बात किया। तो मैंने बोला रोहित तूने तो मेरा दिन बना दिया है। मैं बोलता सर ऐसा क्यों बोलते हो, मतलब तेरा फ़ोन आया, मतलब कभी तुम लोग इतना बिजी रहते हो, और तभी तो कोरोना था तो सब घर पे थे, तो काफ़ी डिस्कस किया था। फिर मैंने बोला कि पीपल आर डाइंग, हेल्प पीपल, हेल्प सोसाइटी। बोला सर मैंने मेरा फाउंडेशन चालू किया है, अच्छा, एंड आई एम हेल्पिंग देम, सो आई टेक अ प्राइड कि रोहित वेरी प्राउड ऑफ यू। करेक्ट, कि पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा सबके पास है, पैसा कुछ करने के लिए यू डोंट नीड मनी, आपकी नीयत और दिल चाहिए करने के लिए, पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है अगर कुछ करना है तो। मेरे पास कहाँ पैसा था स्कूल करने के लिए, आई बोरोड फंड एट 2% इंटरेस्ट। मेरे दोस्त लोग मेरे को बोला कि तू डूब जाएगा, इधर स्कूल चलेगा नहीं तेरा। गोरा वॉज अ मार्शल लैंड, तभी स्कूल्स नहीं थे और तभी पूरा जंगल जैसा था 94 में। फिर भी किया बिकॉज आपका नीयत साफ था, आपका इंटेंशन अच्छा था, आपका इंटेंशन लोगों को मदद करना था, एजुकेट देम एंड हेल्प देम इन द स्पोर्ट्स। मैंने मेरे 700 स्टाफ के 1200 बच्चों को ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाया। करेक्ट। क्योंकि मेरे पास जब पहला एडमिशन आया तो देवर सिंह के सर फीस कम करेंगे, बोला यू डोंट हैव टू पे द फीस, गो। जब मेरे स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, तो जो टीचर सुबह 5 बजे उठ के, कभी वसई विरार भाईंदर से उठ के आते, 7 बजे क्लास में टच करते दूसरे के बच्चों ने, तो उसका बच्चा पढ़ेगा तो क्या होने वाला है। तो आज वही टीचर्स के बच्चे, आज वो भी अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर सब बन गए। मेरी एक टीचर है, उसका लड़की प्रियंका नायक मैडम, हमारे जो टीचर, उसकी लड़की शिवानी नायक, शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, जिसका यूएस के चैनल पे इंटरव्यू आया था। एंड शी यूज्ड टू वर्क ऑन यू नो ब्रेन,
शी डिड PhD इन दैट न्यूरोलॉजी एंड उसमें द इफेक्ट्स ऑफ मारिवाना एंड कोकेन जो पूरी दुनिया में अभी काफी यूथ को खत्म कर रहा है. So she used to work on the effects of marijuana and cocaine on the youth and adults brain. So ऐसे बच्चे आज पढ़ के मतलब इतना खुशी होता है. और मैं स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ जब मिलते हैं तो कि आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपका सक्सेस मेरा सक्सेस है, मेरा कुछ भी नहीं है अलग. आप खुश तो मैं खुश. आप सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल नहीं तो फिर मेरा सक्सेस जीरो है. तो आज रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और शार्दुल ठाकुर इज ऑल्सो अनदर क्रिकेटर, यूज्ड टू कम फ्रॉम पालघर, बोईसर. ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की. ऐसा नहीं है, जिसके लिए बोला कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत वैल्यूज है, उनको कुछ करना है. तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप के बच्चों को पुट देम ऑन द ग्राउंड, पुल देम अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड फोन्स. बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. पेरेंट्स एक्चुअली मांगते तो पैसा दे देते, फोन्स दे देते महंगे महंगे, फिर कहाँ वो करने वाले हैं. मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ गिव देम व्हाट दे डिजर्व एंड नॉट व्हाट दे डिमांड. सो आज अगर उस टाइम में फोन्स होते थे, गेम्स होते थे, 95 2000 की बात करो, तो आज ये क्रिकेटर जो मिल रहे हैं वो मिलते नहीं थे. एक बार तुम होने के बाद में जो करना है करो ना. वंस यू achieved your goal and heights, do what you want, but before that you have to work 18-20 hours. मैंने स्कूल में 20-20 घंटा काम किया है. आज स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल इज अ ब्रांड. आज भी मेरे पीछे लोग आते हैं 200 करोड़ लेके टू सेटअप न्यू स्कूल. मैं नहीं कर रहा है बिकॉज देयर फोकस इज टू मेक मनी, और मुझे यही नहीं करना है. यू मेंशन्ड शार्दुल ठाकुर राइट नाउ. व्हाट वाज ही लाइक इन हिज चाइल्डहुड? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Actually, he came only for 1 year. 10th standard में आया, बोईसर से आया था. सो शार्दुल के साथ में इतना मेरा ये नहीं था जितना रोहित के साथ में, क्योंकि रोहित 7, 8, 9, 10 किया और बाद में भी स्कूल में यूज्ड टू कम एवरी डे. तो रोहित ने भी 10th स्टैंडर्ड में हंगामा किया था. आई वॉज इन US एक्चुअली. एंड माई डॉटर कॉल मी, बोला डैडी जस्ट टर्न ऑन आज तक स्टार्स जी. बोला क्या हुआ? तो मैं बोला मैं इधर तो न्यूज़ चैनल नहीं आता ये सब, यू नो. ये बात कर रहा हूँ प्रॉब्ली 2006. Okay. At that time he was already must be playing cricket. स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड. Okay. सो बोला क्या हुआ? बोला शार्दुल भाई ने 6 बॉल में 6 6 मारा है. And he's on all the news channel. Bolte has broken the record of Ravi Shastri and equal the record of Ravi Shastri and Garfield Sobers. तो बोला अच्छा, मतलब भेज देना मेरे को कुछ वीडियो रहेगा तो मैं देख लूँगा. तो दूसरे दिन उसने मेरे को फोटो निकाल के भेजे, सब न्यूज़पेपर के, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, DNA, यू नो, जितने भी टॉप चैनल, मुंबई मिरर, 6 इन एन ओवर. मतलब दिस ऑल हैरिसडील एंड ऑल एलिट डिवीजन, इट इज काउंटेड एज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. करेक्ट. तो रिकॉर्ड में आता है. करेक्ट. तो पूरा उसमें था. फिर तो मैं आया US के बाद, यू नो, एनुअल डे था, रोहित को अपना शार्दुल को कॉन्ग्रेचुलेट किया. फिर मैंने उसका सत्कार किया था एनुअल डे में भाईदास में उसका भी. एंड फॉर अ क्रिकेटर लाइक हिम जो फास्ट बॉलिंग उनका मेन स्पेशलिटी है, टू हिट 6 sixes मस्ट बी अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. मेरा शार्दुल से भी बात होता है. ये बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब है. करेक्ट. ऐसा नहीं कि आज वो बड़े क्रिकेटर बन गए इंटरनेशनल तो कौन योगेश पटेल, नहीं. आई लव देम फ्रॉम, ऐसा नहीं कि मैं उनको मेरे बच्चों के जैसा ही प्यार करता हूँ. और वो भी दे ट्रीट मी लाइक, यू नो, द फैमिली मेम्बर्स. सो शार्दुल का भी फिर मैंने सत्कार किया उसको. मैंने तभी 25,000 का चेक दिया था. एंड आई थिंक ही मस्ट हैव बीन द फर्स्ट प्लेयर इन मुंबई टू गेट दैट बिग प्राइज मनी. जब मेरी स्कूल की फीस 250-300 रुपया थी स्कूल की. लेकिन जस्ट दिस इज हाउ, यू नो, यू मोटिवेट द चिल्ड्रन. दे विल गेट इंस्पायर, यू नो, कि भाई चलो और कुछ करते हैं अच्छा. सो बाद में तो उसका जर्नी अलग लेवल पे स्टार्ट हो गया क्रिकेट का. अगेन ही वेंट टू बोईसर, यू नो,
और फिर ये सिलेक्शन हुआ उसका। बीच में भी मेरे को मिला तो MCA में मिला था कामदिली में। तो वैसे तो मेरी बेटी की शादी वगैरह में भी आए थे वो, शार्दुल हरमित सब आए थे, सिद्धेश एंड ऑल। सो वहाँ पे मेरे को बोला जब वो आई थिंक 3 years बिफोर IPL के सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट CS के कॉलअप्स हो गई थी। सो ही केम फॉर बैटिंग, तो ही टोल्ड मी कि साक्षी धोनीज वाइफ इज टू टेल धोनी कि ये बंदा भी क्या करेगा, अपन ऑलमोस्ट ओवर हो गई अपनी गेम। तो धोनी ने साक्षी को बताया कि बंदे ने स्कूल में तो कुछ बड़ा किया था, 6 बॉल में 6 6 मारा था, आज देखते हैं क्या करता है। तो उसने तभी 5 बॉल में 15 रन किया और सेमीफाइनल भी निकाला और फाइनल भी जीता। तो दैट इज हाउ दिस ऑल स्टोरीज फ्लोट। करेक्ट। इधर फिर आप रिसेंटली मिला था मेरे को BKC में, मुंबई रणजी का मैच था। तो रोहित भी था, शार्दुल भी था, और एक हमारा स्कूल का स्टार है अंकृश रघुवंशी। करेक्ट यस। जिसको हमारे दोस्त अभिषेक नायर जी लेके आए थे दिल्ली से। सो वो भी ग्रेट टैलेंट है। तो मैं शार्दुल से काफ़ी 2 घंटा डिस्कस किया था सब क्रिकेट के बारे में। उसका बीच में सर्जरी हो गया, तो उसकी वजह से उसके क्रिकेट थोड़ा सेटबैक था उसको थोड़ा। मैंने बोला कि लाइफ में सब चैलेंजेस आते हैं बाबा, यू हैव टू जस्ट कीप अप योर गुड वर्क, आपके इंटेंशन साफ रखने का, अच्छा काम करते रहने का। किसी को हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करने का। बाकी तो राम भगवान को भी 14 साल वन में जाना पड़ा था। तो वी आर जस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ट्रू। सो चैलेंजेस आती है लाइफ में, बट यू हैव टू फेस इट एंड इट ओवरकम्स। इट डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो अभी रिसेंटली ही डिड वेल इन द अगेन IPL में भी रणजी में अच्छा किया। अब देखा 100 रन मारा उसने जब पूरी टीम कोलैप्स हो गई थी। 47 पे 7 थी। ट्रू। सो उधर भी मैंने अपलोड किया, मतलब शार्दुल आई एम सो प्राउड ऑफ यू द वे यू मतलब सर कुछ नहीं करते रहने का, अपना मेहनत। बहुत मेहनती लड़का है शार्दुल। इज ऑल्सो हिज पेरेंट आल्सो, रोहित शर्मा के पेरेंट्स शार्दुल का, दे आर वेरी वेरी मॉडेस्ट, वेरी डाउन टू अर्थ। इनको जरा भी नहीं लग रहा है कि उनका बच्चा रोहित शार्दुल आज एक स्टार बन गए। आज भी वो वही लेवल पे और वही जो पहले थे आज भी वही है। रोहित के डैडी को भी मैं फ़ोन करता हूँ कि मीडिया वाले मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, आप आइए ना इंटरव्यू के लिए 2 मिनट। बोले सर ये सबसे मेरे को हाथ जोड़ के उनको बोलो, रिक्वेस्ट करो। बोलता मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे बेटे को भी आप इतना प्यार देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बोलता है मेरे को चैनल से, मीडिया से दूर रखो। करेक्ट। सो फिर ना बोलते तो मैं भी फिर उनको मीडिया को बोलता हूँ कि यार लेट्स नॉट प्रेशराइज देम फॉर द इंटरव्यू। तो शार्दुल इज ऑल्सो डन मतलब फिनोमिनली वेल। करेक्ट। और भी अच्छा वो करेगा। एक्चुअली उसका सर्जरी हुआ ना, उसके बाद में उसको बहुत एंकल का काफ़ी टाइम गया उसको रिकवरी में। और क्रिकेट में इंजरीज होता है ना, मैंने देखा है खुद के, मेरा बेटे का सर्जरी हुआ था, मतलब शोल्डर का, डॉक्टर पार्टी वाला हैड ऑपरेटेड हिम। 1 साल लगा, 6 months he had to go to Ambani, South African physio. And there's a full process, right? Rehab और वो पूरा physio और वो सब रहता है. But बेटा he then gave up. बोलता डैडी I don't want to play. तो मैंने उसको clear cut बोला, बेटा it's okay. True. Cricket is your not life. Let me tell your people कि जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं आज क्रिकेट अच्छे लेवल पे, सबको चांस नहीं मिलने वाला है. इट डिपेंड्स ऑन द लक ऑल्सो. करेक्ट. आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक होना पड़ेगा, क्योंकि जब रोहित शर्मा खेलता था तभी इतने क्रिकेट फेमस नहीं थे. क्यों? क्योंकि तभी आईपीएल नहीं थे. आईपीएल हैज चेंज द फेस ऑफ द क्रिकेट. मैं विल बी सरप्राइज, एकनाथ सोलकर जी को मैं मेरे स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स में बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट प्रबोधन में गुरेगांव. इतने सिंपल कपड़े पहन के आए थे. क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, लेजेंडरी एकनाथ सोलकर. इनका जूतों में होल था. आज बीसीसीआई इज फंडिंग टू द क्रिकेटर, बट बिफोर अगर करते थे ना
So it would have been much and better. you cannot do anything because they live with the respect and dignity. You cannot tell them that we'll help you. No, thank you. They had a lot of respect and dignity, and they live their life with the dignity. And this is what all the people should do. Live with the respect. And मैं मेरे स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ, आपके कॉलर पे दाग मत लगने देना. किसी के बाप से डरने का नहीं लाइफ में. आप जब भी डरते जब भी आप कुछ गलत करते, और कुछ गलत करते फिर पूरी जिंदगी आपको लोग दबाते डराते. सो ये सब क्रिकेटर्स वी हैव IPL आने के बाद एवरी चाइल्ड मैं परेशान हो गया. रोहित शर्मा जब फेमस हो गया, स्कूल में आता था प्रैक्टिस को तो हंगामा होता पेरेंट्स का पूरे. ऐसे देखते तो के लिए मैं जाता था, मैं ऑफिस में ऊपर फ्लोर पे राउंड में ऑफिस में कम बैठता था. मैं फ्लोर पे जहाँ टीचर्स नहीं तो क्लास में जाके बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था. उनको आई टू टेल देम टू रीड बुक्स, वॉच सम गुड चैनल्स लाइक नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, विच विल एजुकेट यू. तो नीचे ग्राउंड पे जाता तो रोहित प्रैक्टिस करता था, तो वो पेरेंट्स बोलते सर रोहित को बोलो ना, हम बोल रहे हैं हेलमेट नहीं उतार रहे. बोला क्यों परेशान करते, उसको प्रैक्टिस करने दो. फिर मैं उसको बोलता रोहित बेटा 2 मिनट हेलमेट दे, तो उसको हेलमेट निकाल के फिर पेरेंट्स को चिल्लम चिल्ल होता था वो आने के बाद. मैंने आगे आपको यादों का बात किया, चंद्रकांत जो जैक ऑफ ऑल था. करेक्ट. वो रोहित शर्मा जब भी साउथ अफ्रीका जब भी जिस दिन फाइनल था, मेरे स्कूल में 40 चैनल्स थे दोपहर में 12 से लेके लाइव. रोहित शर्मा का, टीचर्स का, सबका. वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि आई सेड ऑलमाइटी गॉड इज डूइंग यार, मैंने कुछ भी नहीं किया है. सो मेरा टॉक टू कोच एंड द टीचर वो पढ़ाए. सो रात को एक्चुअली वो हम लोग पटाखे लाए थे, बैंड लाए थे, इतना चालू था, लोगों का खाना सब मिठाई लाए थे. लेकिन सबका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि वो मैच एक्चुअली ऑलमोस्ट हम हार गए थे. एंड फाइनली मिसबा दे प्लेड दैट स्कूप. करेक्ट. ही गॉट आउट. और फिर जो हंगामा और जो पटाखे निकाले वापस और जो धमाल हुआ. तो रोहित शर्मा फिर ना उसका आने के बाद वो मेरा जो यादव है उसकी गाड़ी लेके आया. उसकी किट लेके, रोहित स्कूल में था, उसकी गाड़ी. तो रोहित ये नया गाड़ी स्कोडा. हाँ सर नया गाड़ी. बोला रोहित ये तेरी मेहनत का पैसा है, डोंट वेस्ट ऑन कार्स, अभी तेरा बिगिनिंग है. सो बाय सम फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज. कार तो डेप्रिशिएट हो जाएगा. आज तू 20 लाख का लिया, 3 साल के बाद बेचने जाएगा तो 15 लाख भी नहीं आएगा. तो घर लिया 20 लाख का, तो 3 साल के बाद उसका 40 लाख 50 लाख होएगा. हाँ सर किया. तो आपने उनको तभी से ट्रेनिंग थोड़ा दे दिया था कि पैसे को भी कैसे इन्वेस्ट करना है. मैंने उसको यहाँ पे ये भी बोला था कि तेरे पीछे लड़की आएगी, ग्लैमर आएगा, यू वेयर द ब्लिंकर्स एंड फोकस क्रिकेट. क्योंकि क्या हुआ था 2007 के वर्ल्ड कप में, रोहित बिकम हीरो. उसके होटल के नीचे लड़कियां बैठती थी, रोहित शर्मा विल यू मैरी मी, वो बोलता था मेरे को. रोहित बोलता था तो मैं रोहित ऐसे 1700 लड़के आएगी. जिस दिन एक्चुअली क्या है, सचिन एंड कामली बोथ वर ग्रेट टैलेंट. ट्रू. बट लुक एट सचिन, वेड आई थिंक कामली वॉज बेटर टैलेंट देन सचिन. But he couldn't focus. So he got distraction and he wiped out. नाम किधर भी नहीं. सचिन को इतिहास याद रखेगा, रोहित शर्मा को इतिहास याद रखेगा. तो it is up to you that who you sit with, who is surrounded with. It is very important. अगर आप गलत लोगों के संग में आ गए तो your life will be over. And मैं बात कर रहा हूँ आगे की. आज की बात करता हूँ तो 9th and 10th kids are, let parents listen to this, they are into drugs and all. मैं 9th के बच्चों को पूछता था कि how many of you are your parents when you go back home. मेरी AV रूम में लेके 2 डिवीज़न को बैठता था, एक भी बच्चा हाथ ऊपर नहीं करता था. तो
नर्सरी जूनियर के पेरेंट्स गेट पे छोड़ने आते हैं तो इतना दे हक देम किस देम, मैं बोला ये सब मत करो इधर गेट में, टाइम खराब है, लोग देख रहे हैं आपको, योर चिल्ड्रन विल बी वल्नरेबल, दे आर ओपन टू अटैक, hundreds of and thousands of children have been kidnapped for extortion. ये मत रोड पे घर में करो ना, रोड में सब लोग देख रहे हैं, कौन क्या आपको मालूम नहीं। तो मैं पेरेंट्स को मेरी स्पीच में बोलता था कि जब नर्सरी जूनियर प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो आप गेट में ही हक करते हो, बच्चा आपको हक करता है। ऐसा क्या होता है कि द मोमेंट चाइल्ड गो टू सेकेंडरी, नॉट अ सिंगल चाइल्ड इन 9th स्टैंडर्ड इज रेजिंग द हैंड, कि आप में से कौन कौन बच्चा घर पे जाके पेरेंट्स को हक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर द पेरेंट्स। करेक्ट। बिकॉज जब बच्चे मारपीट भी करते हैं पेरेंट्स बच्चों को, तो जब बच्चा वीक होता है तो खा लेते हैं मार, जब बच्चा स्ट्रेंथ होता है ना तो लेट मी टेल यू द चिल्ड्रन दे हैव किल्ड द पेरेंट ऑल्सो। 14-15 साल के, क्योंकि लॉट ऑफ ऑफिसर किड्स आर स्टडिंग इन माई स्कूल, सो व्हेन आई मीट देम यू नो they share the story, it is very scary. So इसके लिए what is important, bonding with the children. Parents का, मैं parents को बोलता हूँ कि आप ना शाम को डिनर लेते दो, no phone calls, nothing, साथ में चुपचाप, you need to communicate with the child. वरना मेरी स्पोर्ट्स क्लब भी थी, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। मैंने रेस्टोरेंट भी किया था मिला थिएटर मलाड में, तो मैं राउंड मारने जाता तो पेरेंट्स लोग बच्चों के साथ खाना खाने आए, ऑर्डर किया है, कोई भी फ्री नहीं है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, चारों अपने अपने फोन में, या फिर कुछ काम ऐसा कुछ। मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सराउंडेड एवरीवन इज बिजी ऑन द फोन। और सबसे बड़ी बात, मैं जिम में भी सी आई डू लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जिम में भी जाता हूँ तो सबके कान में ईयरबड्स लगे, एयरपोर्ट्स लगे, हेडफोन्स लगे, ट्रेन में भी देखता हूँ तो सबके। तो स्पेशली जब जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं तो दे स्वैट, और फिर उसको कान में डालते रहते हैं, तो दिस पीपल दे फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट फॉर द ईयर ड्रम्स। उनको इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, यू नो इट कैन डैमेज योर ईयर ड्रम। लेकिन अभी कैसा है कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि झुंड हो रहा है, मतलब इट्स अ फ्लॉक, एक के पीछे जा रहे हैं। सो आप यू डोंट चेस पीपल, आप खुद का विजन बनाओ, खुद का गोल सेट करो, यू हैव टू सेट अ गोल। एंड आई मेट कलाम साहब ट्वाइस, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, और मेरी हर स्पीच में उनका नाम लेता हूँ, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द सेंचुरी इंडिया, यू नो सीन। वो बोलते हैं कि सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो जो आपको सुने ना। बिकॉज आई वॉज इन भवन, भारतीय विद्या भवन चौपाटी, तो ही नेवर गिव स्पीचेस, ही इंटरेक्ट विद द यूथ। तो एक बच्चे ने बोला कि सर वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कंट्री, व्हाट टू डू। ही सेड गो होम एंड स्लीप, घर पे जाके सो जाओ आप, तो न आपको कोई नड़ेगा ना आप किसको नड़ोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। देन ही सेड दैट हैव यू हर्ड अबाउट बम्बल बी? बोला नो सर। बोलता बम्बल बी इज अ बी इन द स्फीयरिकल शेप, and as per the aerodynamic law spherical shape cannot fly, but against all the law bumblebee flies. It flies, yeah. So what does it imply? Why can't we human being with brain, ear, eye, legs can do wonders? Then he said that you need to set your goals and dream high. You become master of all the problems. Let people understand, you become master of all the problem. Do not allow problem to become your master. Correct. See the great man. But unfortunately, hardly people know all this, you know, his caliber. So यहाँ पे भी यही है कि लोगों में क्षमता है, they need to do extraordinary. इतिहास याद रखना चाहिए उनको। क्रिकेट खेलना है तो आगे IPL आने के बाद इतने क्रिकेटर्स लाखों, पहले हजारों में थे, अभी खाली सिटी में ही लाखों है। करेक्ट। बच्चे, और कंट्री की बात करो 18 करोड़। अब देखो ना कैसे कैसे बच्चे आ रहे, कोई बोलता है 14 साल का वो वैभव एंड ऑल। वैभव सूर्यवंशी। सो ऐसा टैलेंट है सब में। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, यू नो, ट्रेन वेल,
मैं रोहित के और वापस रोहित पे आऊँगा, बिकॉज मैं बीच में ये पॉइंट क्यों ले रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि इट विल हेल्प द पेरेंट्स टू ब्रिंग अप देयर चाइल्ड ट्रू इन द राइट डायरेक्शन. हम नहीं चाहते कि वो 50 करोड़ 100 करोड़ बनाए. इवन इफ ही लिव्स वेल, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 2 करोड़ की गाड़ी चलाते हो ना तो यू आर रिच, नॉट नेसेसरी. क्योंकि मैं हर टाइम मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि जो फाइनल मैच लगा था ना वर्ल्ड कप का, आई थिंक 2018 का मेरे ख्याल से, तो एक स्टूडेंट आया मेरा, एक्स स्टूडेंट, जगुआर लेके, चाबी दी हाथ में, सर चलाओ. बोला बाबा मेरे को ये सब आदत मत डाल, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन. लेकिन मैं बोला कि ये गाड़ी के लिए रोड्स कहाँ हैं? तुम अगर बाकी गाड़ी में भी जाएगा तो वही डिस्टेंस में पहुंचने वाला, और ऑन द कंट्री छोटी गाड़ी में जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है 2 करोड़ वो डर डर के चलाना पड़ता है कि उसका मिरर टूट गया तो 50 लाख रुपए का मिरर भी नहीं मिलेगा. सो मैं बोलता हूँ कि द मनी विल गिव यू लग्जरी, इट विल नॉट बाय यू हैप्पीनेस, इट इज विद इन ओनली. करेक्ट. अब 4 लोगों के आंसू पोछेंगे ना, इट विल बी मोर वर्थवाइल देन सिटिंग इन लग्जरी मर्सिडीज BMW में बैठा ना, तो जितना टाइम आधा घंटा 1 घंटा ड्राइव किया वही प्लेजर देखा, उतर गया, खत्म वो प्लेजर. लेकिन आप 4 जन के आंसू पोछे ना, आपको सुकून मिलेगा, रात को नींद आएगी, और वो उनकी दुआ मिलेगी आपको लाइफ टाइम. वो लोग आपको याद रखेंगे वो दुआ में, और वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, लोगों की दुआ भी लेना. यू नो, पीपल मस्ट रिमेंबर यू इन ऑल देयर प्रेयर्स. दे विल ओनली डू व्हेन यू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल. तो रोहित शर्मा जब भी हो गया, स्कूल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, यूज्ड टू कम इन माय क्लब. आई यूज्ड टू हैव अ स्पोर्ट्स क्लब जस्ट नेक्स्ट टू द स्कूल, और वो भी मैंने किया था बच्चों के लिए. Actually, I was way out of time. The club name was Spring Club. That was the first club in Mumbai to have a Dolby Digital theater. अच्छा, ये कब से? 2000. ओके. 40 sittings theater. हाँ. वो थिएटर मैंने had done with the thought process कि बच्चों का बर्थडे वगैरह रहते हैं, तो पेरेंट्स पार्टियाँ करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे कुछ एजुकेशनल मूवी वगैरह दिखा सकते हैं. करेक्ट. ताकि पेरेंट्स को भी फिर दे कैन रिलैक्स, क्योंकि हैंडलिंग चिल्ड्रन इज नॉट इजी. ट्रू. छोटे छोटे बच्चे. एंड दैट वाज द फर्स्ट क्लब इन मुंबई टू हैव टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, जो आज भी बॉम्बे की कोई क्लब में नहीं है. मेरे ख्याल से द क्लब है अंधेरी में, दे हैव दिस इक्विपमेंट्स, और ग्रांड है JW, दे हैव इक्विपमेंट. तो आई यूज दिस इक्विपमेंट 25 years बिफोर. तो रोहित यूज्ड टू कम फॉर जिम देयर, ही यूज्ड टू कम फॉर स्विमिंग. फिर उसका जिम स्विमिंग होने के बाद वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, हम खाना साथ में खाते थे. तो रोहित शर्मा का खाते खाते जो 45 जर्सी भी पहनता है ना, वो वेरी वेरी फ्यू पीपल दे नो व्हाई. कैसा हुआ, क्या था वो स्टोरी उसके पीछे? सो एक दिन हम खाना खा रहे तो मेरा दोस्त आया था, ही इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, रफीक भाई करके इनका नाम है. यूज्ड टू हैव हिज शॉप इन मलाड मॉल में था, हाइपर सिटी में. सो मेरे को बोला कि अरे रोहित को सर उसका नंबर मेरे को ये दो ना, डेट ऑफ बर्थ. मैं उसका लकी नंबर बताता हूँ, वो उसको नंबर, तो रोहित ने बताया उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह. तो उसने 10-15 मिनट लेके उसका कैलकुलेशन किया, फिर बोलता है कि सर उसको 9 नंबर पहनना चाहिए. रोहित को बोला उसने कि रोहित भाई आप ना 9 नंबर पहनो, इट विल बी वेरी लकी फॉर यू. तो 9 नंबर भी पहन सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन 9 होना चाहिए टोटल. जैसे 9 नंबर 27, 36, 45, 54, 63, 20 ऐसा. करेक्ट. तो ही चोज 45 देन रोहित ने. फिर उसकी जितनी भी गाड़ी आई वो सब 45. हाँ. नंबर जर्सी भी 45. हाँ. यू नो. सो हम लोग का एक एनुअल प्रोग्राम था अपना स्प्रिंग क्लब में, तो रोहित को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था मैंने. सो वहाँ पे ये भी आए थे, अरबाज खान, फिल्म पर्सनालिटी. तो हमारे दोस्त है, यू नो, डॉक्टर एजाज असाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजियो ऑफ मुंबई, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर भी ट्रीट किया है,
यू नो बड़े बड़े क्रिकेटर्स महेश भूपति, कॉन्सुलर जनरल ऑफ यूएस, कमिश्नर ऑफ मुंबई, सबको ट्रीट किया उन्होंने. एंड ही वाज आल्सो फॉर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आल्सो ही वाज फिजियो. करेक्ट. तो वो आए थे सब वहाँ पे. तो मैंने आरबाज को इंट्रोड्यूस किया, रोहित शर्मा. अरे रोहित शर्मा, ही स्पोक टू रोहित फॉर 25 मिनट्स. हम लोग सब साइड में खड़े. बोलता है यू आर अ ग्रेट टैलेंट, आई फॉलो यू, यू नो. He was also impressed and you were also Impressed. fan. उन्होंने भी, अरबाज जी ने भी वही बोला था कि यू नीड टू फोकस वेल, यू नीड टू वेयर द ब्लिंकर्स. जो मैंने रोहित को स्कूल टाइम में बोला था कि तेरे पीछे मीडिया आएगी, ग्लैमर आएगा, सेम चीज उन्होंने भी बताया. डिस्ट्रैक्शन हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी. फिर प्रोग्राम हो गया, उसने सबको फेलिसिटेट किया, रोहित ने सब जो भी मेंबर्स थे उनको. तो वो सब काफ़ी यू नो, रोहित की तो जर्नी बहुत अलग थी. मतलब फिर मूव टू हिज न्यू हाउस इन खार, वहाँ पे भी गए थे उसको. फिर देन ही शिफ्टेड टू वर्ली हाउस. तो जब मेरा उसके रोहित से बात हुआ था तो बोलता कि सर हम वी आर वेरी बिजी. मैंने बोला ना, तूने यार फ़ोन किया मेरे लिए कि सर एक दिन छुट्टी मिलता है, वी टेक अ फ्लाइट, वी गो टू यू नो यूएस. हमारा भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट रहता है लोगों का. तो कंटिन्यूस बोलता है, पैक्ट रहता है उन लोगों का भी. बहुत हालत ख़राब है. मैं इतना ही बोलता हूँ कि डू वेल एंड फोकस वेल, ईट वेल, स्लीप वेल एंड थिंक वेल. यही चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ. ऑल ऑफ यू मस्ट ईट वेल, स्लीप वेल एंड थिंक वेल. क्योंकि 20-20 साल के लोगों के बच्चे का हार्ट अटैक हो रहा है, आप समझो. ये इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग मैटर फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं. क्यों? देयर आर 3 फैक्टर्स. रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं गेम खेल के. द मोबाइल एंड द रेडिएशन. मोबाइल रेडिएशन इज वन पार्ट. रेडिएशन किल्स योर ब्रेन सेल्स. उसका भी आर्टिकल मैंने 20 साल पहले लिखा था. उसके बाद जूही चावला का भी उसने चालू किया था. लेकिन मैंने स्कूल के पेरेंट्स को, मेरे स्कूल में टावर्स थे, वोडाफोन वगैरह. जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था यूएस का तो मैंने उनको उठा के फेंक दिया. मुझे कुछ नहीं चाहिए, गेट आउट ऑफ माई. तो मुझे बोलते हैं कि वी विल फाइल अ सूट ऑन यू. मतलब कर जो भी करना है गेट के बाद. तो उखाड़े भी नहीं वो लोग ने. तो मैंने मेरे हाथ में लगा कि जो चीज़ बच्चों को नुकसान करती है वो मेरे स्कूल में रहेगी नहीं. करेक्ट. रेडिएशन का आपने बात किया, मेमोरी लॉस हो सकता है. बर्ड्स मर रहे बिकॉज ऑफ रेडिएशन. दे आर टॉकिंग अबाउट 4G 5G एंड ऑल. But they're not talking about the harm. LT, लोगों को LT क्या मालूम नहीं. द पीपल दे यूज GPRS क्या है मालूम नहीं. बहुत मैंने हर स्पीच में बोला है, टू मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर द प्लैनेट अर्थ. एलन मस्क अभी मार्स पे जाने को बात कर रहे हैं. अरे पहले प्लैनेट अर्थ को तो बचाओ. यू टॉक अबाउट ओशन. रोहित वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओशन. कभी तो अवर कोरल्स आर डाइंग यार, यू नो. व्हाट आर वी डूइंग? हमारे स्टूडेंट भी दे यूज्ड टू वर्क, जाके बीच पे क्लीन कर रहे हैं. मैं इनको बोला कि हम लोग इधर सफाई का काम नहीं करने आए, हम उनको एजुकेट करना है कि गंदा मत करो. क्योंकि इट इज अ मैस एवरीवेयर. सो लेट एजुकेट राइट फ्रॉम द स्कूल. स्कूल इज द प्लेस वेयर कैन प्रोड्यूस लीडर्स. Let me tell you all your people. School is the place where you nurture the leaders. मैंने तो हमेशा बोला है, मेरे तो एक स्कूल का ग्रुप भी बना है, फ्यूचर लीडर्स. अच्छा. सो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि पीपल आर लॉस्ट इन दिस जर्नी. एजुकेशन कुछ क्या चल रहा है वो अलग लेवल पे चल रहा है. बच्चों को रट्टा मार के 99%. मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ बच्चा 60% भी लाएगा. मेरा बेटे की बात कर रहा हूँ. जब अंदर 14 अंडर 16 के ला बोर्ड का एग्जाम था, सो आई सेड इवन इफ यू ब्रिंग 60%, आई डोंट केयर, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ. सुबह 4 बजे सो रहा है बच्चा, 7 बजे उठ के वापस उसको एग्जाम. तो भी सिक्योर 80% में. पर मैंने बोला तू यार इतना क्यों लाया, तू मेरे को कॉम्प्लेक्स देगा, क्योंकि मैं भी इतना तो नहीं लाया कभी. सो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि यार देखो,
Unfortunately, you know, children are committing suicide. Because of the pressure, they cannot be able to deal with the उनको pressure. क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच भी लेना है और बोर्ड के एग्जाम में में top pick 90% लाना है. इट इज नॉट डन. Superhumans इट तो इज नहीं है, मैं correct. हाथ जोड़ के सब पेरेंट्स को बोलता हूँ थ्रू योर चैनल, प्लीज डू नॉट डू दिस क्राइम टू द चाइल्ड. ये बच्चे है ना, लेट देम एंजॉय द चाइल्डहुड यार. यू नो, कोचेस भी ना, आई शुड नॉट से, बट वो भी उनको एक दिन का छुट्टी नहीं देते सुबह शाम. ऐसा मत करो, क्योंकि सब बच्चे क्रिकेट नहीं खेलने वाला है. लेट देम ऑल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड देयर चाइल्डहुड एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड. क्योंकि मैंने लिखा था लॉन्ग बिफोर दैट चाइल्डहुड एंड स्टूडेंटहुड इज द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ अ लाइफ. बाकी कुछ याद नहीं रहता. आपने स्कूल में क्या मस्ती किया, क्या जो भी, वो सब याद रहता है, मेमोरी. बाकी कुछ मेमोरी नहीं फिर, क्योंकि लाइफ वंस यू गो टू कॉलेज स्ट्रेसफुल है सब. फिर भागते रहते हैं, जॉब के लिए भागते रहे. मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, व्हाई यू वांट टू गो फॉर जॉब, फोकस ऑन अ स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड यू बिकम एंटरप्रेन्योर. मेरी एक स्टूडेंट है, यू नो, शी हैड कम फॉर अ शार्क टैंक में आई थी वो. उसका भी बहुत बड़ा स्टोरी हो गया था. 2.5 लाख रुपए डैडी ने भरा साइंस में. उसको साइंस नहीं जमा तो छोड़ दिया. डैड गॉट अपसेट, भड़क गए. बोलते अभी कल से तेरा ही, तू खुद करने का, मेरे पैसा 1 रुपया मिलेगा नहीं. मांडलिक करके मेरी स्टूडेंट थी, तो खुद की कंपनी बनाई, खुद का एजुकेशन किया और शार्क टैंक में पहुंच गई थी. तो दिस पीपल दे अपलोडेड लाइक एनीथिंग टू दैट गर्ल. सो ऐसे बच्चे हैं ना, उनके पास स्किल है. यू नीड टू डू समथिंग. स्वामी विवेकानंद सेड दैट टेक रिस्क इन योर लाइफ. इफ यू विन यू विल लीड, और इफ यू लूज यू विल गाइड. रिस्क तो लेना पड़ेगा. आज मैं रिस्क नहीं लेता तो आज मुझे कोई जानता नहीं था. हाँ, करेक्ट. आज स्कूल नहीं करता तो मैं भी किधर जॉब करता था. लेकिन मैं जब छोटा था ना, तो मैं पढ़ता नहीं था. लेट मी बी ऑनेस्ट. मैं भी मस्ती करता था. तो मम्मी हमेशा चिल्लाती थी कि तेरे को कोई जॉब नहीं देगा, जॉब. तो मैं बोलता जॉब किसको करना है. हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, 10 रुपये जेब में नहीं था. तो मैं बोलता था मेरे को जॉब वॉब नहीं करना है. तो बोलते तो भूखे मरेगा, ये वो. मतलब मैं भी जो भी करूँगा खुद का करूँगा. तो आज मेरे पीछे, आज मैंने जैसे बताया, लॉट ऑफ पीपल आर देयर. आज मेरा 5,000 करोड़ का एम्पायर होता था. आई हैड ऑफर फॉर मॉरिशस, दुबई, ऑल ओवर फॉर स्कूल. गुजरात, सूरत, बड़ौदा, कांदिवली, सब जितने भी बड़े स्कूल है वो सब प्लॉट मेरे अंडर होके गए. वो मेरे साथ करने को बोल रहे, मैंने हाथ जोड़ के ना बोला, क्योंकि आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद दिस चिल्ड्रन. आई वॉन्टेड टू गाइड देम. अगर 10 स्कूल करूँगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. आई वॉन्टेड टू सी दैट की क्वालिटी है. आज मेरा हर स्कूल का बच्चा इज अ मॉन्स्टर इन देयर ओन इंडस्ट्री. रोहित शर्मा का बैचमेट डॉक्टर चैतन्य गिरी, ही इज अ साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, एंड ही वर्क विथ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. जस्ट गूगल करना डॉक्टर चैतन्य गिरी. is a authority. He was the one who told me in December 2019 that sir, world is going to bleed. Why? बोलता है China is weaponized the virus. He used that word, China is weaponized the virus. बोलो मत किसको सर अभी. December 2019, and he told me in February कि सर shut down the school, don't wait for government orders. Before that, he told me, तो I did exercise. We were way ahead of time. फरवरी में हमने पता किया हर क्लास में 40 बच्चे में से 20-25 बच्चे के घर में कोई ना कोई चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई has gone. जाके आया है. करेक्ट. दैट मीन्स वो घर पे आया है और ये बच्चा स्कूल में आया है. दैट मीन्स दे हैव नॉट डन गॉन फॉर क्वारंटाइन. हमको क्वारंटाइन का कहाँ कुछ मालूम था बिफोर कोरोना. सो ही टोल्ड मी कि सर एक्सरसाइज हुआ ना, इट इज़ वेरी डेंजरस. दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन शुड नॉट कम. जो 25 बच्चे आना नहीं चाहिए था. मतलब हम कैसे रोके, मतलब शट डाउन. तो वी वर द फर्स्ट वन टू शट डाउन द स्कूल. आई वांटेड टू नो मोर अबाउट आतिफ अत्तरवाला. एंड मैंने ऐसा सुना है कि आपने उनके अगेंस्ट बैटिंग भी किया है. सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस क्रिकेटर? आतिफ भी स्कूल में आया था. ग्रेट टैलेंट. सो अभी बोरेली स्कूल और कांदिवली स्कूल का हम लोग ने एक फ्रेंडली मैच रखा.
तो बोरेली के स्कूल के बच्चे तो मॉन्स्टर्स है सब, ये आतिफ एंड ऑल, राइट. सो कांदिली के बच्चे तो मैं चलो कांदिली का बैटिंग में ओपन करता हूँ, ताकि ये जो बड़े बॉलर उनको मैं खेलता हूँ. तो मैं ओपनिंग बैटिंग को गया, तो आतिफ ओपनिंग को आया बॉलिंग में. तो पहला बॉल आया, जूप करके मेरे थाई पे लगा. दूसरा बॉल आया, वो पूरा फुल टोज ए टांग पे लगा. आई वॉज वेयरिंग पैड, थाई, एवरीथिंग. And yet you were hurt. I was having pain for 4 to 5 months. 4 to 5 months. अच्छा, okay. तो मैंने उसको तीसरा बॉल बोला, कल स्कूल के बाहर फेंक दूंगा मैं तेरे को. तो भी वही बॉल डाला. चौथा, फिर ओवर हुआ, फिर दूसरा ओवर में आया. पहले बॉल में मेरा मिडल स्टंप निकाला उसने. लेकिन आतिफ अख्तर वाला ने जब भी हमारे स्कूल के मैचेस थे, दैट बॉय मेड द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर ऑल. आतिफ रॉक्स शारदा आश्रम. न्यूज़पेपर में एक स्कूल का नाम लाना है ना, टाइम्स जैसे मुंबई में 10 लाख रुपए खर्चा होता है, यहाँ पे आधा पेज उसका नाम पे था. सो he took almost like 6 wickets in 4 runs. अच्छा, he just gave away 4 runs and he took 6 wickets. And you just imagine, शारदा आश्रम कितने रन में आउट होएगा? द लेजेंडरी क्रिकेटर स्कूल. 80? One more chance. 50? 16 रन में. 16 run and it was all out. आतिफ अख्तर वाला 6 wicket haul that. That was, मैं जो उसका बॉल खेलने यहाँ पे बैट लाता और यहाँ पे आता है, जो स्विंग हो रहा था, अनबिलीवेबल. मैंने बोला था कि ये लड़का भी बहुत बड़ा खेलेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि लक फैक्टर बहुत काम करता है. तो कुड नॉट, इज डूइंग वेल, अभी कर रहा है वो. आतिफ भी. हरमीत भी स्कूल में था. अच्छा, हाँ. तो हरमीत सिंह भी, ही वाज अ ग्रेट बॉलर. तो वी वर प्लेइंग गाइस के फाइनल्स, बॉम्बे जिम. तो सेमीफाइनल में भी गड़बड़ हुआ था. हम लोग एक्चुअली मैच हार गए थे. तो उस दिन फिर मैंने कोच को बोला कि एक काम करो, लेट अस प्ले फास्ट और डिक्लेयर करके दे दो उनको. तो कुछ 100 रन की, आई डोंट इवन रिमेंबर, वो 2004 के मैटर थे, 21 साल पहले. सो वहाँ पे आतिफ ने अपना हरमीत ने हंगामा कर दिया था. वहाँ पे भी उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग डाल के खोल डाला. मेरे ख्याल से डॉन बॉस्को था और HMPS फाइनल में था और वी वॉन दैट मैच. सो फाइनल मैच बॉम्बे जिम में था. आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द लेजेंडरी क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई सर. ओके. द ग्रेट लेजेंडरी क्रिकेटर. तो बोलता है, यार योर स्टूडेंट हरमीत सिंह, व्हाट टैलेंट. तो जो भी यहाँ से पास हो रहा है ना, मेंबर्स, कम हियर, वॉच दिस बॉय, कम हियर, वॉच दिस बॉय. They used to watch him play. He used to make in diary. उसके डायरी में लिख रहे थे. बोलता he is going to be next बिशन सिंह बेदी. फिर दोपहर के बाद मेरे को बोला उसके पेरेंट्स को मिलाएंगे, मतलब ऑफ कोर्स. तो हरमीत के पेरेंट्स को मिलाया. तो he had offer बॉम्बे जिम की मेंबरशिप टू हरमीत. अभी हरमीत से की ऑफरशिप मेंबरशिप ऑफर किया. तो he called me his father कि सर मेंबरशिप दे रहे, क्या करें. मतलब यार देखो, आपको जाना पड़ेगा उधर तक खेलने को, आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए. 1 करोड़ में भी मेंबरशिप नहीं मिलता है बॉम्बे जिम में. वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लब, एलिट क्लब है. लेकिन आपको ऐसी 100 मेंबरशिप आएंगी. इसको कुछ बड़ा ही करना है हरमीत को. सो उसने, ही वॉज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सिलेक्टेड फॉर IPL, राजस्थान रॉयल एंड ऑल. बीच में उसका बैट थोड़ा पैच गया, लेकिन बाद में ही went to US और वर्ल्ड कप में रोहित का कैच उसने लिया था. हाँ, correct. It must have felt very awkward to sort of take the catch of Rohit Sharma at that time. मैं बोला छोड़ हमारे घर पे टीवी में हम चिल्ला रहे थे. और फिर एक्चुअली जब भी हमारे स्कूल के मैचेस होते थे ना, आई यूज्ड टू पैम्पर ऑल दिस बॉयज. करेक्ट. मेरी जब भी क्लब थी, स्पोर्ट्स क्लब मेरे अंडर, तो बस मेरी उधर ही रुकती थी पुल साइड. और वहाँ पे बच्चों को ऑन द हाउस जो भी खाना है सब. सो दे यूज्ड टू गेट मोटिवेट. और मेरे सब बच्चों को मैं हमेशा फॉर द सेफ्टी बस में ही भेजता था. भले 2 ट्रेन में पीक आवर्स में एक आधा बच्चा गिर वगैरह गया. करेक्ट. आई नेवर टुक एनी चांस फ्रॉम दैट पॉइंट.
तो हरमित का भी एक बड़ा फिर व्हेन ही डाइड, दिलीप सरदेसाई सर, यू नो, मुंबई मिरर का आधा पेज बिलोंग टू हरमित सिंह एंड प्रतीक गवले. So he had written in his books about all these two boys कि what cricketers are these, you know, they are going to be future. तो उनके बारे में लिखा था when he died. तो ऐसे अपने टैलेंट है अपने बच्चों में. करेक्ट. And he is doing well. Unfortunately, he lost his father and mother. So when he lost his father, he was here. So I met him at his residence and I told him, Baba, do well. Our prayers are with you in this tough time. And he said that, sir, I am happy now in US, you know, and doing well. Coaching भी कर रहा है वहाँ पे. करेक्ट. और so that is a story of Harmit Singh, you know, शार्दुल ठाकुर, आतिफ अत्तरवाला. सिद्धेश लाड also. सिद्धेश लाड का तो मैंने बोला कि वहाँ से तो क्रिकेट स्टार्ट हुआ है. करेक्ट. वरना क्रिकेट, you know, you would not have been introduced और क्या वो भी बिजी थे कुछ रेलवे में, यू नो, ऑल. अभी क्रिकेट सब कर रहे हैं बट वहाँ पे तभी क्रिकेट कहाँ था. सो डॉक्टर पीवी शेट्टी, ही वाज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ MCA. ही सेड इन वंस इन स्पीच कि दहसा से माहिम तक क्रिकेट नहीं था ये बाजू. तो बोलता है क्रिकेट लाने वाले योगेश पटेल है. मेरा स्पोर्ट्स क्लब के सामने इनका एकेडमी हुआ तो ग्राउंड मेरे दोस्त का तो मैं ही लेने वाला था. जब पता चला कि वो ले रहे हैं तो रात को मेरे को 31st नाइट को पार्टी था मेंबर्स का, तो मिलने आए. बोलता है आई नीड योर सपोर्ट. बोला क्यों? तो बोला कि ये ग्राउंड ले. वो ग्राउंड तो मैं लेने वाला हूँ. तो उन्होंने बोला कि यार मेरे कोई बच्चे नहीं, लिसन टू हिज वर्ड, आपके बच्चे खेलेंगे. बोला करो यार, क्या सपोर्ट चाहिए बोलो. तो ही हैज़ डन ब्यूटीफुल ग्राउंड. कभी वहाँ पे सामने के ग्राउंड पे लेजेंडरी क्रिकेटर लाइक वीरेंद्र सहवाग, महिला जयवर्धन है, क्रिस गेल, सब आके गए. फिर अपने लॉन टेनिस प्लेयर लेंडर पेस. तो वर्ल्ड क्रिकेट एकेडमी के लोग आते थे तो सामने करते थे, लेकिन जगह नहीं था. तो दे यूज्ड टू यूज माय कॉन्फ्रेंस एंड ऑल. फिर स्विमिंग वगैरह भी करते थे. अपने VVS लक्ष्मण आए थे एक बार. तो when he went for a gym, so he did 45 minutes cross trainer. So he was very impressed to see my gym equipments. Correct. And he said कि beautiful club. तो डॉक्टर पीवी शेट्टी मेरे को बोलता है यार तुम रोहित को स्पॉइल कर रहे हो. क्यों? बोलता आपको इसको मसाज वगैरह करवा. तो बोला यार वो पूरा, जब बॉडी पूरा दिन मेहनत करते तो बॉडी थकान होती है. Correct. तो उससे थोड़ा मसल रिलैक्स होता है मसाज से. मैं समझता हूँ कि हर क्रिकेटर को एटलीस्ट वंस इन अ वीक करना चाहिए क्रिकेटर को, टू गेट द बॉडी ऑल्सो रेस्ट. पेन भी थोड़ा, और तुम्हारे जो आपके स्पाइन हो ना उसको भी रिलैक्स, मसल रिलैक्स होते हैं. वरना इट इज नॉट इजी. देखो ना क्रिकेटर्स को कितना इंजरी हो रहा है बैक टू बैक. करेक्ट. सो मेरा बेटा भी बोलता था कि मेरे बेटे को भी बोलता था कि बाबा हर मैच में 4 से 5 विकेट लेना है. बोले डैडी हलवा है क्या? तो बाबा हलवा तो सब खाते थे. तो घर पे आके वो इंजरीज होती तो आइसिंग वगैरह करता था. आइस टू सी स्वेलिंग एंड ऑल, बहुत पेन होता था. तो ऐसा अपने को लगता है कि यार ऐसा मारना चाहिए वैसा मारना चाहिए. एसी में बैठ के बोलना इजी है लेकिन वेरी इजी, बट इट्स टफ टू रेप्लिकेट. रोहित का भी सर्जरी बैक टू बैक हुए थे. करेक्ट. यू नो, चीफ गेस्ट थे नटराज के एक अवार्ड फंक्शन में. तो अब वो आप जरा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? सो आई हैव बीन यू नो कॉल एज अ चीफ गेस्ट इन मैनी, एक्चुअली क्रिकेट के प्रोग्राम में बुलाते हैं, यू नो. सो मैं समझता हूँ कि जो जैसे नटराज ने भी एक दे वर स्पॉन्सरर्स फॉर, तो आई अपलॉड देम, यू नो, फॉर देयर वंडरफुल जेस्चर कि ऐसे प्रोग्राम करते. वहाँ पे आतिफ और बाकी क्रिकेटर्स भी थे. करेक्ट. सो उनको मोटिवेट होता है, दे गिव देम द ब्यूटीफुल ट्रॉफीज, यू नो, जो उनके शौकेस में रखते हैं. तो एक प्राइड होता है. आप मेहनत करते हो बट अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करता है, इंस्पायर नहीं करता है, आपको कोई अपलॉड नहीं करता है, आपका जो है उसको कोई वैल्यू नहीं करता है, तो अब फिर लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं.
Correct. बट आप उनको 4 चीज अच्छा बोलते हैं, वाओ वेरी प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट फ्यूचर क्रिकेटर, तो उनको अंदर एक फायर आती है कि यार मेरे को आई कैन डू इट, लेट मी डू इट। तो ये सब काफ़ी, जैसे कल्पेश कोहली करके एक टूर्नामेंट में भी गया था, जो बच्चा, उसके डैडी को भी मैं आज अपलोड करता हूँ कि हर साल वो क्रिकेट के लिए वो बच्चा तो ही डाइड एट अर्ली एज, तो बच्चे के नाम पे दे यूज्ड टू डू द ट्रॉफीज एंड खर्चा करते हैं। तो वहाँ पे भी मैं गया था, तो वहाँ पे भी मैं क्रिकेटर्स को वही बोलता हूँ कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इजी नहीं है। आप मस्ती भी करो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि चाइल्डहुड है तो बच्चों के साथ में आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ना पड़ेगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे ना आप उसका प्रोग्रामिंग कैलेंडर पे, तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्रिकेट खेलना है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे को क्रिकेट खेलना ही है एंड आई कैन डू इट। पीपल आर वेरी टैलेंटेड बट क्या कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम मेहनत करोगे, जब डिलीवर करोगे, परफॉर्म करोगे, तब कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। पर तुम मेहनत ही नहीं करेगा और तुम एक्सपेक्ट कि मेरा, आज देखो रोहित को 2 मैच में बैक टू बैक मारा ना उसने। करेक्ट। वो तो ही इज अ फियरलेस, मतलब किसको भी डरता है, बड़े बड़े, परसों उसने भी बोला ना वो बॉलर कि ही इज द बेस्ट, मुंबई इंडियन का बॉलर था ना, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बुमराह और फॉरेनर्स था, ओके सो ट्रेंट बोल्ट मे बी, हाँ आई थिंक ट्रेंट बोल्ट सेड कि अनबिलीवेबल। रोहित शर्मा का मैंने हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो देखा है, इंक्लूडिंग रमेश राजा, इंक्लूडिंग वीरेंद्र सहवाग, including our coach. And the way he nails all those pull shots, I'm sure आपको भी बहुत मजा आता होगा देख के। Unbelievable. He always nails it. जो बॉल स्पीड में आता है हम तो देख भी नहीं पाएंगे। करेक्ट। हम आतिफ अख्तर वाला का बॉल बराबर तो 140-145 की स्पीड से बॉल आते हैं और वो पुल करना, उसको वो जो टाइम करता है, वो टाइमिंग जो उसका था ना वो बचपन से था। That was his natural flow. Correct. वो ऐसा करता था जैसे लगता है टेनिस बॉल मार रहा है, और वो भी मतलब 60-70-80 की स्पीड से मार रहा है, बट 150 की स्पीड को भी वो ऐसा मार देता है कि इधर पता नहीं चलता है। तो रोहित शर्मा, आई कैन से इन वन वर्ड, उसको इतिहास याद रखेगा, लेजेंडरी क्रिकेटर। एस बंडर, द्रविड़ ने भी बताया ना कोच कि रोहित शर्मा इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उसके पेरेंट्स का ब्रिंग अप, जो गुरुनाथ शर्मा जी है, पूर्णिमा शर्मा, दे आर ऑल वेरी मॉडेस्ट, वेरी डाउन टू अर्थ। आज रोहित शर्मा इज बिकम अ वर्ल्ड लेजेंडरी क्रिकेटर, उसके मतलब दुनिया में उसके चाहक है, तो भी आज भी वो इतने ही ग्राउंडेड और इतने ही नीचे है। कोई किधर आते नहीं किधर। अभी रिसेंटली उनके गुरुनाथ शर्मा जी के बर्थडे में गया था, तो किसको नहीं बुलाया उसने, खाली फैमिली था, पर्सनल था उसको था। तो मैं रोहित के साथ में काफ़ी डिस्कशन हुआ मेरा उसका। मैंने बोला तेरा एक और सत्कार बाकी है, 2007 वाला रिपीट करना है। बोलता है सर ऑस्ट्रेलिया जाके आता हूँ, करता हूँ। अभी तो ही वाज ड्राइविंग हिज रेंज रोवर बाय हिमसेल्फ। सो जिस दिन प्रोग्राम था ना वानखेड़े का, तो अभी आपको मैं वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जाने वाला नहीं था। फिर रोहित के डैडी से बात हुआ, तो मैं चलो उनको जाने वाले थे, तो मैं आपको ले चलता हूँ साथ में। फिर डॉक्टर पीवी शेट्टी ने उनको थोड़ा जल्दी बुला लिया था, गाड़ी भेजा था, तो उसका ब्रदर विशाल शर्मा, वो हम साथ में गए। तो थोड़ा लेट हो गया, तो मैं विशाल को बोला चल बाबा, मुझे मालूम है यहाँ कैसे माहौल होएगा, हम बोलेंगे रोहित शर्मा का भाई तो कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि there will be a sea of people. Correct, yeah. और उसको शूट भी मेरे स्टूडेंट ने ही किया है, वो भी बताऊंगा। श्रीपद गावकर, गूगल करना। मैं बोला ना मेरे स्कूल के बच्चे सब मॉन्स्टर है अपनी, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से पूरा, तो उसने लिया है और भेजा है मेरे को, मैं आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा।
तो हम तो पहुंच गए लकीली। मेरी गाड़ी पे वीआईपी प्लेट का स्टिकर था अंदर। हम लोग देख रहे स्टूडेंट्स 18-20 साल के लोग आ रहे हैं, भर भर के गिर रहे हैं अंदर जाने के लिए, और ट्रेन भर के आ रही है। हम लोग अंदर गए, रूम में बैठे, फिर 6:30 बजे के अंदर गए ऊपर। तो बॉक्स में बैठे थे रोहित के डैडी, मम्मी, उसका भाई। हम लोग सिलेक्टेड लोग थे बहुत उधर। तो बाजू में देख रहे हैं तो पूरा हम लोग एसी में बॉक्स में बैठे, और उधर गर्मी इतना है, बारिश हुआ है, ह्यूमिडिटी इतना था। मैं लोग गजब है, इनको सलाम करता हूँ उनकी जज्बे को। रोहित शर्मा उन लोग मेरे ख्याल से 8 साढ़े हमको मालूम था कि थोड़ा सा ओपन बस में आने वाले हैं। तो दे टुक टाइम, और जैसे हम लोग खड़े थे उधर, चिल्लम चिल्ली रोहित रोहित, तो देखा रोहित शर्मा हम लोग को एग्जैक्टली नीचे उनका ये था रूम, ड्रेसिंग रूम बराबर हमारे नीचे। तो उसको स्क्रीन पे दिखाया रोहित का। बाप रे। तो मेरी वाइफ शी हैड कम फॉर वर्क टू चर्चगेट, वो ट्रेन में बैठी थी। तो बोलते हैं कि हमारे आंख में आंसू आ गए कि अपना स्टूडेंट्स आज पूरा कान में गूंज रहे थे ट्रेन के अंदर, चर्चगेट का, रोहित का स्टेडियम का। सो उसके बाद पूरा सेलिब्रेशन हुआ, हंगामा, रोहित को बोलने ही नहीं दे रहे पब्लिक, इतना ही रोहित रोहित कर रहे। और फिर सेलिब्रेशन के बाद उसने ऊपर देखा हमको, तो बोला है नीचे, तो डैडी मम्मी ना बोले, तो उसने इशारा किया मैं आता हूँ। तो ऊपर आया तो रोहित को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने रोहित सो प्राउड ऑफ यू, न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में किसने किया था, न भविष्य में कोई होएगा। थैंक यू सर। गले मिला, एक फ़ोटो इसके साथ में लिया, वो फोटो मैंने इंस्टा पे डाला और वो वायरल हो गया। तो वायरल भी इसके लिए हुआ क्योंकि और भी मेरे 1-2 जन थे साथ में, दोस्त लोग, तो उनका फेस कट हुआ था। तो बेटे ने बोला कि डैडी अच्छा नहीं लगता ऐसा कट हुआ फ़ोटो। तो उसने फेस निकाला, वो हाथ निकालना भूल गया। हाँ समझा। हाँ। तो पूरा परेशान हो गया 15 दिन। दुनिया भर के मीडिया का फ़ोन कॉल, योगी जी कैसा था रोहित, क्या था, कैसे हुआ उनका, ये थर्ड हैंड का रहस्य क्या है। तो बोला वो मेरे बेटे ने ऐसे सैमसंग में उसका एडिट किया था क्योंकि फेस कट हुआ था। तो लेकिन वो हाथ निकालना भूल गया। तो कोई बोलता है कि धोनी का हाथ, कोई बोलता है कि अमित शाह जी का हाथ है, जय शाह जी का हाथ है, ये सब पूरा। लेकिन वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ फोटो। लेकिन मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि वो रोहित का अलग ही लेवल पे जहाँ पे भी जाता है ना, एक परेशान हो जाता है वो भी एक्चुअली बहुत बार ना परेशान होता है क्योंकि डेफिनेटली प्राइवेसी ब्रीच होता है उन लोग का, नहीं कर पाता है कुछ। और ऐसा नहीं कि फॉरेन गया तो उधर भी वही हालत है जो यहाँ पे। करेक्ट। यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे थोड़े डिसेंसी लोग रहती है, तो दे रिक्वेस्ट, मतलब एक थोड़े पोलाइट वे में, कैन वी टेक वन पिक्चर विद यू। यहाँ पे तो भाग के जाके सीधा चढ़ जाते। Right, that's the time, sir. I had a lovely chat interacting with you. आपने काफ़ी सारे insights आपने बताए right from रोहित शर्मा's childhood, शार्दुल ठाकुर's childhood, आपका स्वामी विवेकानंद International School. All I would like to say is that Cricketgraph wishes you all the best for the journey ahead. So thank you so much once again, sir. I also wish Cricketgraph and the entire team all the very best. My prayers and best wishes are always there with you. And I'm sure that you people also will keep on doing the extraordinary work which you are already doing. Correct. I would like to ask all the fans and cricketers and everyone to like, subscribe and share Cricketgraph YouTube channel, because they are doing a phenomenal work. So let people know what they are doing, and many students from my school have been interviewed by Cricketgraph, including Harmeet Singh, Atif Akhtarwala and all. So I wish once again Cricketgraph all the very best. May God bless you all. Thank you so much, sir. All the best. This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.